Hello friends, welcome to today's lecture for standard 12th mathematics application of derivative. Now, in today's lecture we studied that maximum and minima. That in this section we use the maximum value and minimum value of that function using the derivative. In that topic we studied that first derivative test, second derivative test, local maxima and local minima also. To know that maxima minima, there is a definition number 3. That first definition is here, that if f is said to be defined on an interval I, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास इंटरवल आई में डिफाइन होने वाला, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन आई। एफ को कहेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू कब, जब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई, कोई भी सी पॉइंट उसी इंटरवल का अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि दैट इज एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज इन आई। मतलब कोई भी अगर उस इंटरवल का एक कांस्टेंट अगर नंबर लिए तो वहाँ के लिए सारे वैल्यू हमारे पॉजिटिव चाहिए या हमारे ग्रेटर चाहिए एफ ऑफ एक्स से। दैट नंबर एफ ऑफ सी इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू एफ एंड सी इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। अगर यही वैल्यू अगर रिवर्स होती है दैट एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, देन हम कहेंगे इट इज़ एन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। और अगर f is said to be extreme value in I, their existence c is in I such that f of c is either maximum और minimum value। अगर extreme value मिलती है तो हम उसे कहेंगे either it may be maximum और minimum of f, then number f of c in this case is called as extreme value of f। तो ये है हमारे डेफिनेशन नंबर 3। इसका यूज़ हम बहुत कम ही करते हैं, मोस्टली सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव तो है ही नहीं। Definition number 4, it is an most important for us, that f is a real valued function and c is an interior point in the domain of f। तो एक कोई भी फंक्शन है हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन और c हमारा तो इंटीरियर पॉइंट है इस फंक्शन के बीच में, तो c इज कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा इफ h इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज h? h इज एन इंक्रीमेंट, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, which may be either left side or right side of c। then f of c is greater than f of x for all x is in c माइनस एच और c प्लस एच। तो c के एग्जैक्टली राइट का और लेफ्ट की इंक्रीमेंट के बीच में अगर हम x ले रहे हैं तो f ऑफ c हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए f ऑफ x से। सो f ऑफ c इज कॉल्ड एज एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। अगर ये रिवर्स होता है f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x, तो उसे कहेंगे हम लोकल मिनिमम वैल्यू, दैट इज लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ऑन दिस बेसिस अगर f ऑफ c मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में यहाँ पे डेरिवेटिव आया नहीं, तो डेरिवेटिव आता है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। थ्योरम नंबर 3, दिस थ्योरम सेज दैट f is a function defined an open interval, let f is a continuous as critical point c। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम जब इक्वेटिंग विद जीरो करेंगे एफ डैश ऑफ सी के साथ में, तब जाके जो मिलेगा सी की वैल्यू, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, ये उसकी वैल्यू जो मिलेगी। सो एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through c। f dash of x is greater than 0 at every point sufficiently close and to left of c, and f dash of x is less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of c, then c is called as a local maxima। इसे समझेंगे थोड़ा सा, that f of x be any function, then f is said to be local maxima as f dash of x changes positive to negative, and local minima as f dash of x changes negative to positive as x changes left to right of c। Means if any point of c on that number, on a number line, then x is changes from left to right, then f dash of changes from positive to negative, it is an maximum, local maxima, and it is if negative to positive, then it is called as an local minima। So this is the definition stage, or it is called as a first derivative test। This is most important test for us, that function is changes, derivative changes positive to negative, it is called as an locally maxima, and function or derivative changes negative to positive, it is called as a local minima। For this we can solve
example that f of x is equals to x square. This is our example exercise 6.5, example number 3 first. Then as f of x is equals to x square, let me take a derivative. Then that derivative is what? F dash of x is equals to twice x. Now for finding the critical point, we can equating f dash of x equating with 0. So that f dash of x equals to 0. What is f dash of x? That is 2x equals to 0. Then x is equals to what? 0, because 0 by 2 is 0. So it is an one and only one point. It is a critical point. X equals to 0 is only one critical point. Now on that number line we can plot a 0. So this is an left of 0, this is right of 0. As x increases means what? From left to right. Then we can put up the value of x is less than 0. Then as x is less than 0, that is negative number, then f dash of x is what? That x is, suppose we can put up x equals to minus 1. Then x is equals to minus 1, then the answer is minus 2. Then f dash of x is negative. And when we put up x equals to right of 0, that right of 0 means what? All positive numbers. So we can put up 1. It is an equals to 2. So when we put up left of 0, then it is a negative number. When we put up right of 0, then we put a positive number. So that f dash of x, when x is less than 0, f dash of x is negative. When x is greater than 0, f dash of x is positive. So f dash of x changes sign negative to positive as x increases थ्रू 0. यहाँ पे ध्यान देना है कि एफ डैश ऑफ एक्स साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. कैसे आया हमने देखा. अब अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है मतलब फंक्शन इज लोकल मिनिमम. और कहाँ पे हो रहे लोकल मिनिमम है? लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0. तो इस प्रकार से एग्जांपल्स आपके आने वाले हैं. इस प्रकार से एग्जांपल्स हम करने वाले हैं यूजिंग व्हाट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ना इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है. वी कैन टेक इट that next definition, that second derivative test. That second derivative test says that if f is a function defined on an interval I. अब कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास जो एक इंटरवल i में आ रहा है और c उसी इंटरवल से हमने लिया, तो f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल. मतलब हमें अब f को दो बार डिफरेंशिएट करना है. पहला f डैश ऑफ c और दूसरा f डबल डैश ऑफ c. तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट इक्वेटिंग विद f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0. हम c के वैल्यू मिलेगी और उसके बाद में हम अगर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे. इफ द डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम. इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फंक्शन इज लोकल मिनिमम. इफ टेस्ट फेल, एफ डैश डबल डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 मिला, तो इट इज व्हाट? नाइदर पॉजिटिव, नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम. इन दिस केस we go to again first derivative test and find whether c is a point on local maxima local minima. अगर ये टेस्ट फेल होती है तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना होता है. अब यही वाला एग्जांपल्स हम यूजिंग डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन सॉल्व. दैट एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट टेक अ डिफरेंशिएशन. दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स. इक्वेटिंग विथ फॉर क्रिटिकल पॉइंट इक्वेटिंग विथ 0, देन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0. that 2x equals to 0, x is equals to 0. Now this is an only one critical point. Now take a double derivative. At f dash of x is equals to 2x, take point f double dash of x is equals to what? It is simply 2, and 2 is a positive number for any value of r, any value of x. अब ये आया पॉजिटिव. देन बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी पुटअप करा तो यहाँ पे 0 है ही नहीं. दैट इज ग्रेटर देन 0. हेंस फंक्शन इज, अगर होता है तो f इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास मिलता है लोकल मिनिमम. तो सेकंड डेरिवेटिव बहुत बार बहुत सिंपल होती है, पर इसके लिए आपको चेक करना होता है दैट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. मतलब अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले गए, उसके बाद इक्वेटिंग विद 0 करिए और डबल डेरिवेटिव लिए, और डबल डेरिवेटिव के बाद में एक्स की वैल्यू को पुटअप करिए क्रिटिकल पॉइंट. जहाँ पे वो पॉजिटिव होता है वहाँ पे हमें लोकल मिनिमम मिलता है. जहाँ पे नेगेटिव मिलता है डबल डेरिवेटिव, इट इज एन लोकली मैक्सिमम. इसी के ऊपर डिपेंड है हमारे एक्सरसाइज 6.5. दैट फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू.
इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, आपको फंक्शन दिया है, आपको बोला गया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढिए। सिंपल आपको ढूंढना है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3। नाउ यू नो दैट इज दिस स्क्वेयर नंबर, तो स्क्वेयर निगेटिव नंबर का भी स्क्वेयर आपका पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव का स्क्वेयर ही पॉजिटिव मिलने वाला है, तो ये हर बार ये पॉजिटिव मिलने वाला है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होने वाली 0। देयरफॉर व्हाट, दैट 2x माइनस 1 स्क्वेयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, और हम लिखेंगे दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 स्क्वेयर इज 0। तो ये हर बार आपका 0 से बड़ा ही मिलने वाला है, तो 2x माइनस 1 स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। देन अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो 2x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3 इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 प्लस 3, दैट इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3 it is always greater than equals to 3. This is an your f of x, it is always greater than 3, मतलब the minimum value of f of x is 3. So we say that the minimum value of f of x is 3 and there is no maximum value because maximum value यहाँ पे infinity तक मिलने वाली है, मिनिमम 3 ही मिलेगा, 3 से कम नहीं मिल सकता। तो स्क्वेयर जो नंबर होते हैं वो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी है, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। सो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। नाउ दिस इज एन अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम करेंगे कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड के फॉर्म से, स्टैंडर्ड 10 में हमने पढ़ा था। तो 9x स्क्वायर को हम लिखेंगे व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 2, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x और सेकंड टर्म क्या बनी हमारी 2, तो मुझे चाहिए 2 का स्क्वायर, सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर, सो आई कैन टेक इट व्हाट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैट 2 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 4 को हमने ऐड भी किया और 4 को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, देन दैट इक्वल्स टू व्हाट 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस इज बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर किसका, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू माइनस 2, देन वी कैन टेक इट, दिस इज एन कंप्लीट स्क्वायर टर्म 3x प्लस 2 whole square minus 2, this is your f of x. Now again there is an squaring term, so squaring term है तो that is it is always greater than equals to 0, लीस्ट नंबर 0 मिलने वाला है, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, दोनों साइड से -2 कर दे, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, देन f of x, this is an f of x is always greater than equals to -2, means what, there is an only minimum, the local minimum value is what, -2, local minimum value is -2 and it is a maximum value, no, there is a no maximum value because maximum value हमारे पास infinity मिलने वाली है, so no maximum value of f of x, of this f of x। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको एग्जांपल्स करने, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव यू कैन इजीली डूइंग फॉर सम एग्जांपल्स, दैट इज f of x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 का। इसी प्रकार से आप अगर इसी को हम अगर डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो भी ये बन सकता है, पर आपके इंटरवल पता होने चाहिए। नाउ वी विल टेक इट सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर दैट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, h of x इक्वल टू sin x प्लस cos x, दिस इज अवर third example of example number 3 in exercise 6.5, as we have given that x is between what, 0 to pi by 2, then using the first derivative test we must have the derivative, let me take a derivative h dash of x, then derivative of sin x, it is equals to cos x, derivative of cos x equals to what, minus sin x. To finding the critical point we must have equating with 0 of h dash of x, then h dash of x equals to 0, then cos x minus sin x equals to 0, then when we shift at sin x, that is cos x equals to sin x, that means ऐसी वैल्यू जो दोनों के लिए इक्वल हो, दैट इज अगर हमने cos को शिफ्ट किया दैट इज tan x इक्वल्स टू 1, sin x बाय cos x होगा दैट इज tan x और इधर बनेगा हमारा 1, तो tan की वैल्यू 1 कब बनती है, वो बनती है पाई बाय 4 के लिए, देन x इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 4,
और पाई बाय 4 हमारा जो इंटरवल था 0 to पाई बाय 2 उसके बीच में आता है, 0 to पाई बाय 2 के बीच में आता है। नाउ अब चेक करेंगे हम पाई बाय 2 के लेफ्ट की साइड और राइट की साइड। एज यक्स इंक्रीजेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच डैश ऑफ यक्स। तो अगर हमने लिया यक्स इज लेस देन पाई बाय 4, पाई बाय 4 के लेस देन हमने लिया पाई बाय 6 वैल्यू, देन चेक करेंगे एच डैश ऑफ यक्स दैट कॉस ऑफ पाई बाय 6 देन माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। तो कॉस पाई बाय 6 बनेगा हमारा √3/2 और -1/2, इट इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू, then h dash of x is positive and x is greater than pi by 4, then h dash of x again is a negative value। तो चेक करेंगे आप तो आपको मिला h dash of x is changes from positive to negative। तो as a first derivative test as x increases h dash of x changes sign positive to negative means what, it is an local maxima। And where is local maxima? Local maxima at x equals to pi by 4। So we say that h dash of x changes sign positive to negative as x increases, hence h of x is local maxima at x is equals to pi by 4। तो यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। आज के लिए हम इतने ही एग्जाम्पल्स, 2-3 एग्जाम्पल्स ही ले सकते हैं। नेक्स्ट के सेशन में हम आने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिकॉल करिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।